Assalamu alaikum dear students, this is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures, grade 6, Science, lesson number 4, lecture number 3, different kinds of matter. Students, bring your science book, open it and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. Task. Dear students, we will discuss following tasks in this lecture: classification of materials on the basis of common properties and matter, states of matter. First of all, we will discuss about different kinds of materials. What are the different kinds of materials and what are their examples? Classification of materials. Grouping things together on the basis of certain similar properties is called classification. यानी चीज़ों को उनके आपस में कुछ सिमिलरिटीज़ की बेस पर क्लासिफाई करना एक सिंगल ग्रुप में, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जब कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी उनकी मैच कर रही हो, सिमिलर हो, तो उस बेस पे जब हम चीज़ों की ग्रुपिंग करते हैं, सिमिलरिटीज़ रखने वाली चीज़ों को जब हम एक ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को, इस ग्रुपिंग को क्लासिफिकेशन कहते हैं. वेज ऑफ क्लासिफाइंग मटीरियल. अब वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं? साइज़, कलर एंड शेप्स. यानी हम साइज़ के बेस पे उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. सिमिलर साइज़ की जो चीज़ें हैं उनको एक ग्रुप में रख सकते हैं. कलर्स, वी कैन पुट सिमिलर कलर थिंग्स इन अ सिंगल ग्रुप. एंड शेप्स, इफ different objects having different similar shapes, we can group them in a single classification. Living or non-living things. We can also classify things on the basis of living or non-living. यानी हम environment के abiotic और biotic factors को भी इस तरह से classify कर सकते हैं. Classification help us to understand and know more about the materials present around us. Classification से हमें चीज़ों के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प आउट करती है क्लासिफिकेशन. एंड सेकेंडली, हम चीज़ों के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं. हम चीज़ों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ को, उनके दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ सिमिलरिटीज़ और उनके कंट्रास्ट को हम बहुत ईजीली डिस्कस कर सकते हैं और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. लुक एट पेज नंबर 31. We can classify things according to their size, color, shapes, or maybe living or non-living things. So there are many ways of classifying materials. For example, some are made from the plastic, fabrics, metals, wood, and some are living beings and some are non-living beings. अगर हम कुछ चीज़ों को देखें, कुछ चीज़ें हमारे पास प्लास्टिक की बनी हैं, कुछ हमारे पास फैब्रिक की बनी हैं, कुछ हमारे पास जो हैं वो मेटल की बनी है, कुछ वुड की बनी है. यानी डिफरेंट मटेरियल्स की चीज़ों को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलरिटीज प्रेजेंट इन बिटवीन दैम. एंड सम थिंग्स आर लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो हम इस तरह से चीज़ों को लिविंग और नॉन लिविंग में भी क्लासीफाई कर सकते हैं. इफ़ यू लुक एट पेज नंबर 31 ऑफ द बुक, यू कैन सी डिफरेंट मटेरियल्स. अब यहाँ पर आपके पास एक टेबल दिखाया गया है, प्लांट है, स्पून, अ स्पैरो एंड अ प्लास्टिक बॉटल. सो यू कैन क्लासीफाई दीज थिंग ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. आपके पास प्लांट और स्पैरो जो है वो लिविंग कॉलम में आ जाएंगे और बाकी तीनों चीज़ें जो है वो नॉन लिविंग कॉलम में चली जाएंगी. एंड फर्दर हम इनको इनके मटीरियल की बेस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं. Living beings commonly present around us include human beings, various type of plant, animal, insect, and etc. So we can classify things on the basis of as they are plants or animals. And plants also classified on the basis of algae, fungi, aquatic herbs, shrubs, etc. यानी plants को भी हम उनकी different types के मुताबिक classify कर सकते हैं. अब इस classification से हमें क्या clear होता है? It is clear from this topic that we can classify things on the basis of their size, color, shape, material by which they are made, and on the basis of their biotic and abiotic components. Non-living things can also be classified on the basis of their use, source and material. यानी कि non-living things को हम इस तरीके से भी classify कर सकते हैं कि उनका material जिससे वो बने हैं वो क्या है, वो किस source से हमारे पास आए हैं और उनको हम किन किन जगहों पर use कर सकते हैं.
क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे कि कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बेस पर हम मटेरियल्स को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। डिफरेंट मटीरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स। अब डिफरेंट मटीरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी उनकी डिफरेंट कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी बेस पर हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। द टू मेजर प्रॉपर्टीज़ आर mass is basically the amount of substance that something contains, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जो कि उसके पास मौजूद है, यानी जिस अमाउंट पे वो कंसिस्ट करता है वो उसका मैस है। लेट सपोज अगर आपके पास वाटर है दैट इज़ 1 लीटर, 2 लीटर और 3 लीटर, सो द अमाउंट ऑफ मैटर दैट दिस लिक्विड थिंग कंटेन्स इज नोन एज इट्स मैस। आपके पास एक चेयर है, उसका अपना एक मैस है, ठीक है। इट कुड बी 4 किलो, इट कुड बी 3 kg। तो जितना उसका आपके पास मैस है वो उसका क्या है, वो अमाउंट है जो वो अटेन कर रहा है। सो मैस कैन बी डिफाइंड एज इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट समथिंग कंटेन्स, यानी किसी भी एक ऑब्जेक्ट में जो उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम मैस कहते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपके पास वॉल्यूम, यानी किसी चीज़ ने कितनी जगह घेरी हुई है, उसका हुजम कितना है। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मटीरियल। लेट सपोज वी कैन टेक अगेन एग्जाम्पल ऑफ अ चेयर। एक चेयर है, वो कितनी जगह घेरी है, वो उसका वॉल्यूम है। इसी तरह अगर आपके पास यू हैव अ कप ऑफ वाटर, तो वो एक कप ऑफ वाटर कितना वॉल्यूम अटेन किए हुए, कितनी उसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, वो उसका क्या है, वॉल्यूम है। आइदर आप उसको किसी जग में डाल दें, किसी जार में डाल दें, तो जो 1 कप ऑफ वाटर है उसका जितना वॉल्यूम है, लेट सपोज 250 ml अगर उसका वॉल्यूम है, यानी 250 ml स्पेस उसने ऑब्टेन की है, तो आप अगर उसको किसी जार में, किसी जग में अगर उंडेलते हैं तो वहाँ पर भी उसका जो वॉल्यूम है वो 250 ml ही रहेगा। सो वी कैन क्लासीफाई दीज मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक mass and volume. The volume is measured in cubic centimeters, और वॉल्यूम जो है उसको क्यूबिक सेंटीमीटर्स में भी मेजर किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी दैट अ कप ऑफ वाटर कुड बी 250 ml मिलीलीटर्स, यानी उसका जो लिक्विड, उसका जो सिलेंड्रिकल मेजरमेंट है वो 250 मिलीलीटर्स हो सकती है। तो इसी तरह से अगर आप उसको क्यूबिक सेंटीमीटर्स में लेते हैं तो इसका जो यूनिट है साथ में हम वो क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऐड करेंगे। जिस तरह हम लिक्विड के लिए जो यूनिट है उसको ml यूज़ करते हैं, सॉलिड्स के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, तो अगर हमने वॉल्यूम मेजर करना है तो वॉल्यूम के लिए हम जो यूनिट यूज़ करेंगे दैट कुड बी क्यूबिक सेंटीमीटर। So the mass of an object is measured in kilograms or pounds, and the amount of space occupied by a material is called volume. The volume of a substance is measured in cubic meters. So the things around us are made of material, and some things are made of one thing, like a wooden bowl can be made of one type of wood alone, and most things like aeroplane, ship, buildings, etc. are made up of कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, यानी कि कुछ चीज़ें सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल से बनी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बनी होती हैं, तो हम उनको उस बेस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑल द मटेरियल ऑक्यूपाई स्पेस, गैस ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। अब हमें पता है हर मटेरियल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब गैसेस हैं, अब वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी उनको भी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्पेस की ज़रूरत है। सो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट मटेरियल इज़ डिफरेंट, एंड द सेम मैस ऑफ कॉटन विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन अ मेटल। इसी तरह अगर हम देखें कि अगर सेम मैस ऑफ मटीरियल है हमारे पास, लेट सपोज वी हैव 3 किलोग्राम ऑफ कॉटन एंड वी हैव 3 किलोग्राम ऑफ अ मेटल। सो कॉटन की जो वॉल्यूम कैपेसिटी है, जो स्पेस वो कैरी करेगी, जो स्पेस वो कंटेन करेगा कॉटन, वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मेटल। सो वी कैन से दैट सेम अमाउंट ऑफ matter, same amount of different kinds of material but having the same amount of mass can occupy different space. So we can say that they have different volume. So this can also note true that a material with one more volume will also have greater mass. अब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अगर let's suppose कॉटन एंड हमारे पास मेटल है, अगर कॉटन ने वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉटन का वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो उसका मैस भी ज़्यादा होगा, बल्कि कॉटन इज़ लाइटर दैन द मेटल। सो वी कैन आइडेंटिफाई थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ मैस एंड वॉल्यूम एज कि किसी
सब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का जितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो उसका मैस है, और वॉल्यूम वो स्पेस है जो वो कैरी करेगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक चेयर है, उसको रखने के लिए हमें ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू अ बल्क ऑफ मेटल। तो हम अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि चेयर ने ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है तो उसका मैस ज़्यादा है, बल्कि मैस मेटल का ही ज़्यादा रहेगा। इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम कि कौन सी चीज़ कितनी जगह घेरती है, इट डिपेंड्स अपॉन मैटर कि मैस कितना है। इज इट क्लियर क्लास? ओके, द नेक्स्ट वन इज मैटर। सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मैस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अपना एक अमाउंट ऑफ मैटर हो और वो जगह घेरती हो, यानी उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो, वो क्या है? मैटर है। सो एग्जाम्पल कुड बी गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। द types of matter or the states of matter that exist in this world are in three forms: solids, liquids and gas. So all these types can occupy space and have mass, so these are known as matter. But not all the materials are matter since they have no mass and occupy no space. इसी तरह से अगर हम गैस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की बात करें तो ये मैटर हैं क्योंकि ये जगह भी घेरते हैं और इनका अपना एक अमाउंट ऑफ मैटर है, यानी मैस है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जो कि मैटर नहीं है, क्योंकि ना तो वो स्पेस कैरी करती हैं और ना ही उनका अपना कोई मैस है। सो दीज कुड बी टेलीविजन सिग्नल्स, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें ना तो कोई जगह घेरती हैं, बल्कि ये वेव्स की फॉर्म में, सिग्नल्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं, और रेस की फॉर्म में, जैसे लाइट है वो रेस की फॉर्म में वन प्लेस टू अदर प्लेस पास करती है। तो ऐसी चीज़ें ना तो जगह घेरती हैं और ना ही इनका कोई मैस होता है। सो दीज कुड नॉट बी इंक्लूडेड इन मैटर। The next we will discuss about states of matter one by one. So all the matter exist in three states: solids, liquid and gases. So we will discuss them in detail. All matter exist in three states, जैसा कि आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है। सॉलिड्स भी हैं, लिक्विड भी है और गैसेस भी हैं। गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। Now we will discuss them one by one and we can discuss their properties. First one is solids. Solids have fixed shape and volume. They do not change their shape or volume easily. Solids की अपनी एक fixed shape होती है और उनका अपना एक fixed volume होता है। ना तो उनकी shape change होती है और ना ही उनका volume easily change किया जा सकता है। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, आपके पास एक solid cube है जिसकी अपनी एक shape है और उसका अपना एक fixed volume है। ना तो आप इसकी shape को easily change कर सकते हैं और ना ही इसके volume को। एटम्स, अब यहाँ पर अगर आप देखें बुक के पेज नंबर 32 पर आपका सॉलिड्स में एटम्स की डेफिनेशन दी गई है। चूँकि एटम्स कंबाइन करते हैं आपस में, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एंड देन मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म a mass of a solid. So we can have definition of atoms. Atoms are the smallest indefinite आइडेंटिफाइबल पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी पार्टिकल का वो छोटे से छोटा ज़रा जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके, यानी जिसमें उस मैटर की सारी प्रॉपर्टीज़ हों, उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। सो atom are the smallest identifiable particles or units of a substance, and a group of atoms bonding together form a molecule. So the molecule in a solid are packed closely and tightly. अब solids की fixed composition क्यों होती है, उनकी fixed shape और volume क्यों होता है? क्योंकि उनके जो molecules होते हैं वो बहुत closely packed होते हैं। The molecules of a solid have strong intermolecular forces of attraction. अब ये इतने compact पैक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, एंड दीज फोर्सेस कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर एंड क्लोजली पैक्ड, और यही फोर्सेस उनको क्लोजली एक दूसरे के पास रखती हैं और उनको एक परफेक्ट पैकिंग देती हैं। एज अ रिजल्ट सॉलिड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप एंड दीज फोर्सेस मेक सॉलिड्स हार्ड एंड रिजिड, और इसी वजह से जो सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड और रिजिड होते हैं। लुक एट पेज नंबर 32, आपको सॉलिड्स की जो अरेंजमेंट है वो नज़र आ रही है। प्रॉपर एक अरेंजमेंट है, इनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट दिखाई गई है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में मौजूद है और इनके दरमियान में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लिक्विड्स. Liquids have fixed volume, but they take the shape of the vessel in which they are kept, hence their shape is not fixed. Liquids का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि क्यूबिक सेंटीमीटर्स में इनका वॉल्यूम तो फिक्स होगा कि इतने क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये इतने क्यूबिक सेंटीमीटर है, लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं होती है। आप पानी को जग में डालें, चाहे वो एक कर्व शेप का हो, आप उसे किसी ग्लास में डाल दें, वो चाहे
सिलेंड्रिकल हो। इसी तरह से अगर आप उसको किसी बाउल में या किसी बीकर में डाल दें तो वो शेप उस बीकर की अटेन करेगा, यानी कि आप लिक्विड को जिस तरह के सांचे में डालेंगे वो उसमें ढल जाएगा। इसी तरह हम जैसे जेली मोल्ड्स बनाते हैं, जेली के लिए डिफरेंट मोल्ड्स होते हैं, क्योंकि जेली लिक्विड है तो हम उसको डिफरेंट तरह के सांचों में ढाल लेते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड का अपना एक फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप नहीं होती। 1 कप ऑफ वाटर और 250 ml ऑफ वाटर, आप उसको जिस भी बीकर में डालेंगे वो 250 ml ही रहेगा या वो 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ही रहेगा। उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा बल्कि उसकी शेप चेंज होगी। अगर आप उसे सिलेंड्रिकल जार में डालेंगे तो वो सिलेंड्रिकल होगा, अगर आप उसे क्यूबिक जार में डालेंगे तो क्यूबिक होगा। अब आपके सामने यहाँ पर क्यूबिक जो है बीकर दिखाया गया है जिसके अंदर लिक्विड मौजूद है। सो आप स्लाइड पे देख सकते हैं, शेप ऑफ अ कंटेनर, फ्री स्पेस एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि शेप ऑफ कंटेनर वो अटेन करेगा और बाकी स्पेस फ्री रहेगी एंड वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। So we can say that water when poured into a glass takes the shape of the glass and when poured into a jug takes the shape of the jug, but its volume remains the same. उसका वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। The molecules in a liquid are less tightly packed. अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो less tightly packed होते हैं, इसी वजह से इनकी कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स थोड़ी सी वीक होती हैं। The reason for this is that the forces of attraction between the molecules of a liquid are less strong देन इन आ सॉलिड। तो इनकी जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं आपस में वो थोड़ी सी वीक होती हैं। अब हम देखेंगे फ्लूइडिटी क्या है। फ्लूइडिटी बेसिकली किसी भी लिक्विड के बहाव को कहते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड हैव स्पेस बिटवीन देम सो दे कैन मूव, दिस इज नोन एज फ्लूइडिटी, यानी कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में स्पेस होती है तो वो ईजीली किसी भी मोल्डेबल फॉर्म में फ्लो कर सकते हैं। जैसे आप पानी को जग में से ग्लास में डालते हैं, आप उसको पोर करते हैं तो वो किस तरह से एक थोड़ी वेव लाइक नेचर में आ जाता है। इसी तरह जैसे आप अगर कहीं रिवर साइड पर जाएं तो पानी किस तरह से मूव कर रहा होता है, उसकी फ्लूइडिटी कितनी ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर आप पानी को किसी पाइप के थ्रू गुजारते हैं, आप पाइप स्पाइरल ले रहे हैं, आप सिंपल पाइप ले रहे हैं या वेवी पाइप ले रहे हैं, तो आप देखते हैं कि लिक्विड उस तरीके से मूव कर रहा होता है। तो दिस इज़ फ्लूइडिटी ऑफ वाटर, जो कि फ्री स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स मौजूद होती है, उसकी वजह से वाटर की जो फ्लूइडिटी होती है वो ज़्यादा होती है। सो वी कैन डिफाइन फ्लूइडिटी एज the molecules have space between them and they can move within the liquid, and this is called as fluidity. Next we will discuss about gases. Gases are the states of matter that do not have fixed shape and fixed volume. ना तो इनका कोई fixed shape होता है ना fixed volume होता है। If you take a bottle of Coca-Cola, अब यहाँ पे हम simple household example से लेकर इस concept को चलते हैं। अगर आपके पास एक बॉटल है Coca-Cola की, आप उसका जब lid open करते हैं यू फील दैट कि वहाँ से गैस जो है वो बहुत जल्दी से बाहर रश आउट होती है। इट मीन्स दैट गैस ऑक्यूपाई एज मच स्पेस एज मच इट कैन अटेन, यानी जितना बड़ा उसको कंटेनर दिया जाएगा वो उस पूरे कंटेनर में फैल जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होती है, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होती है, तो वो पूरे जार को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सो दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। आप उसको अगर किसी छोटे जार में बंद करेंगे तो उसकी स्पेस और उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर आप उसी गैस को किसी बड़े जार में रखेंगे तो जिस तरह से लिक्विड्स को आप किसी बड़े जार में भी डाल दें तो उसका जो पोजीशन है वो वही रहती है, तो गैसेस की पोजीशन वही नहीं रहती बल्कि वो पूरे जार का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सो वी कैन से दैट दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। Example, air in a football, gas filled in oxygen cylinders, these are examples of gases. So we can say that the air in a football and the air in a balloon or in a bicycle tire has different shapes and different volumes. So we can say that gases do not have fixed volume and do not have fixed shape. The molecules in the gases have large distance between them and they are very little intermolecular forces of attraction. अब यहाँ पर अगर आप पेज नंबर 32 पे देखें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आपको दिखाई गई हैं एक बैलून में कि गैस जो है वो पूरे बैलून के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किए हुए है। इसी तरह आप स्लाइड पे देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग एंड ऑक्यूपाई द होल द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। Okay dear students, now you have some homework. Open up your diaries, write date, subject and then write down your diary.
यू हैव टू डू नाउ यू नो पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 1 and 2। आपने नाउ यू नो पेज नंबर 33 पर जो दिया गया है उसका क्वेश्चन नंबर 1 and 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। हम पीछे जो टॉपिक पढ़ते आए हैं उसी से रेलिवेंट ये ब्लैंक्स हैं, बहुत ईजिली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। एंड सेकेंडली यू हैव question number 2, that is match the correct answers. So you have to match the column with the appropriate answer in the next column. So you have to do page number 33 on your book. and इसी तरह आपने पेज नंबर 33 पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस की, जो हम पैराग्राफ की फॉर्म में पढ़ चुके हैं और उन्हीं को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है इन पॉइंट फॉर्म। तो आपने उन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एंड ऑफ द लेसन। Allah Hafiz।